A very good evening to one and all present over here. I, Divya Jain, Managing Committee Member of Ahmedabad branch of Vikasa, welcomes you all. Before starting the session, let's begin the session with our ICI motto song. I request Sajad sir to play ICI motto song. य एष सुप्तेषु जागृति य एष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्लं तदेव शुक्लदब्रह्मा तदब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 Thank you, sir. Do you people know what is the meaning of Paramarsh? Generally, by Paramarsh, we mean consultation, that is, discussing with someone or taking advice. There is no greater wealth than wisdom, no greater poverty than ignorance, no greater heritage than culture, and no greater support than consultation. Now, I would like to invite CA Harit Dhariwal sir, our Chairman of Ahmedabad branch of Vikasa, to address all the students. Thank you, Divya. Faculty for the session, CA Pankti ji, the entire Vibrant Vikasa team. I welcome you all to today's evening wonderful session on the how to build a brand me. Well, when Divya told me about today's session, I was so happy because I remember before 2 or 3 years, we had something like this for the CA members, how to build a brand you. So it's similar to what we had a session there, and it is a very important session because as I think Pankti ji will be stressing upon it, but it's very important to build a personal brand because in today's competitive ruthless world we have to stand out, we have to build our own brand. And when I got to know about this topic, two extremely divergent persons came to my mind. First is Lady Gaga, who has her own brand for that for, if you say for that matter, and other is also Baba Ramdev. So we consider both of them as extremes, but you see how they build their own brand. You know, the connect that they have with the audience, the connect that they basically, fought for a lot of rights like Lady Gaga did. Baba Ramdev took us to the roots, so something or the other they had. So about the brand, I would just say that obviously Pankti ji would be stressing it on it further, but I just want to add that, let us be focused, let us be genuine, and everybody should have a brand wherein the other people should tell your story. Because अपनी story सब बोलते हैं. Let us create something that people would appreciate you and tell your story to the world. So with this, I wish you all a very happy learning. This is a wonderful, compilation of days that Paramarsh is doing, and everybody is doing a wonderful job. And thank you to the faculty, CA Pankti ji, for coming today. And I'm sure everybody will be enlightened, and we all will be able to build our brand in going forward. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Before starting the session, I would like to introduce our faculty, CA Pankti Kharod ma'am. Pankti Kharod ma'am professionally qualified a chartered accountant by Institute of Chartered Accountancy of India and secured rank and distinction in the examination of Master of Commerce and Bachelor of Commerce respectively. Secured rank and bagged the title of state topper in examination of higher secondary school under Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board. And her professional experience is presently she is associated with IIM Ahmedabad as an academic associate in field of finance, whereby diligently involved in various activities like course design, evaluation, and providing tutorial support to the students of the institute for various PGP courses, involved into various research activities and fulfilling the support to the professors of the institute in academic and research activity presently involved in various core courses of PGP and IIM
such as finance reporting and analysis, cost control system, and financing of firm. Previously, she is associated with Adani Institute of Infrastructure Management as an academic associate in the field of infrastructure finance, risk management, and taxation, whereby involved in various educational related activities like undertaking research, case writing, course designing, and its revision, evaluation, and providing tutorial support to postgraduate students of the institute. Uh, Her strengths are divergent thinking, reading skills, diagnostic and remedial teaching, and motivation for better achievement and stewardship. Like, personal branding is something you need to understand, and it's something you need to develop deliberately. Even if you have great knowledge in particular field or in particular subject, to develop your goodwill. So, uh, so for the same, we organize this session to understand the importance and how to achieve it. So, thank you so much. Over to you, ma'am. Hello, hello everyone. Am I audible? Yes, ma'am. A very good evening to all of you, and thank you so much, Divya, for such a nice introduction. Before I start today's session, I would like to thank the team Vikasa for giving me an opportunity to be part of the series Paramarsh. It would be really a great opportunity for me. What is the brand? So, in as Harit sir said, in today's competitive world, we all need to have some unique identity for ourselves, and that is our brand. Not only the products, but as an individual also, we should have our brand. In today's competitive world, to sustain and to develop further, we must have our brand, some unique characteristic. Just give me a moment, I'll share my presentation. The screen is visible. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is visible. Yeah. So let's start today's topic: how to create brand me. In today's world, it is much important for each one of us to brand ourselves, to sustain and to develop ourselves, to have some prestigious position, not only in our professional life, but also in our personal life. Our brand is much more important than anything else. We all need to have some unique characteristics to make ourselves different from the crowd. कहते हैं ना कि भीड़ का भाग मत बनो, but भीड़ का कारण बनो. To be the part of a crowd, it's not an important, but to be reason of the crowd, it's a very much important. Make your own identity, your own brand before anyone brands you. Brand yourself. It's a, in our profession of a CA is a very much important. But before creating a brand, it's necessary for us to understand what is a brand. So in simple terms, if I say brand is something, an iconic image of some product or a person that makes that person or product unique from others. For an example, iPhone. We all are using a smartphone, but iPhone is something different than other phones. That's why we all have some pre-built image of iPhone in our minds. Previously, before a 5 to 10 years or sometimes ago, brand is only related to the companies or some products or some corporates. But now in a digital era and in that digital footprint, we all have that digital footprint, and every individual must have a personal brand. Now, in a day-to-day activity, more than anything else, your personality, your uniqueness will tell more about yourself than you yourself do. It is said by someone that your brand is what people say about you when you are not in the room. आपके प्रेजेंस में तो सब लोग आपके लिए बोलेंगे, बट आपकी एब्सेंस में जो आपके लिए कहा जाता है, जो बोला जाता है, that creates your brand. If we take, there are some, products which are very much of iconic image in our mind. जैसे कि कोई हमें फोन का कहता है, हमें डायरेक्टली आईफोन याद आता है.
जैसे कोई हमें बोलता है कि कॉमर्स की सबसे बड़ी डिग्री, हमारे माइंड में ऑब्वियसली सीए ही आती है. सो ब्रांड इज समथिंग दैट जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती है, जो आपकी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करवाती है. इफ आई से कि ब्रांड का, आप जैसे ही एप्पल का ब्रांड का लोगो देखोगे, आपको कौन याद आएगा? स्टीव जॉब्स. या फिर वाइस वर्सा, स्टीव जॉब्स को देख के आपको कौन याद आएगा? एप्पल का लोगो याद आएगा. दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके साथ कनेक्टेड होता है, जो आपकी एक आइडेंटिटी बिल्डअप करता है. देन इफ इट talk about a Microsoft, we all No problem, ma'am will rejoin. Yes, Divya, are you there? Yes, I'm here. Okay, I guess ma'am has got some connection problem. So yes, can you yes. please just I'm- call her and ask? Yes, I'm connecting with her. Yes, sure. Ma'am, please, yes. sorry for the interruption. There is some network glitch on my side. Am I audible now? Yes, ma'am, you are properly audible. Yes, ma'am. You can carry on. Okay. So सीए के लोगों को देख के Divya, Yes, ma'am. I'm not able to share my screen. Yes, I'm making you the host. Just a second, ma'am. I'll make you host. Just a second. Yeah. Not an issue. Not an issue. Sorry, Thank ma'am. I was unaware about the same. Okay, not an issue. Thank you so much. So हम लोग यहाँ पे थे. सीए के लोगों को देख के you should image yourself here as a brand new. In a very near future, I think all of you will be a CA.
in a year or a two. यहाँ पे CA आपके लिए बहुत बड़ा brand create करेगा. Just a prefix, but it will create a very good brand for you. This prefix CA is the most important brand for us. After knowing what is a brand, now why the brand me is an important aspect for us. So brand me का मतलब हम लोगों ने देखा कि कुछ ना कुछ अपनी अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है. सो वो क्यों जरूरी है? सो ब्रांड मी इज नीडेड फॉर अ 3 रीजन. फर्स्ट वन, एन इमेज इन अ सोसाइटी. सो हर एक का आपने काफी बार देखा होगा कि हम लोगों कोई पर्सन ऐसा होता है जिसके सोसाइटी में या फिर हम लोगों के माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है. लाइक आप किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि सम डॉक्टर्स आर वेरी गुड फॉर ट्रीटिंग देयर पेशेंट. लाइक आप लोगों को बिल्कुल भी हॉस्पिटल जैसी फीलिंग नहीं आती होगी. दे वुड मेक यू फील लाइक अ होम. या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि सम ऑफ द पर्सन इन योर रेसिडेंस एरिया आर वेरी हेल्पफुल टू नीडी. जैसे कि कोई है वो हर रोज सुबह कोई ऐसा काम करता है कि जो आपको बहुत अच्छा लगता है. लाइक किसी बैगर को खाना देता है या फिर बिफोर सिटिंग ऑन द लंच दे ऑलवेज शेयर देयर फूड विद समवन. सो ये सारे ब्रांड क्रिएट करती है. वो काइंडनेस, वो उसका जो नेचर है, उसकी जो पर्सनालिटी है, वो क्या क्रिएट करती है? उसकी ब्रांड क्रिएट करती है. So building an image in the society, or I can say to create a reputation in the society, brand me is very much of important. Apart from a personal life, our brand or our identity is almost very important, necessary in our professional career. आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को मेजर करने के लिए, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को बिल्डअप करने के लिए क्या जरूरी होगा? आपकी एक आइडेंटिटी. To gain a confidence of a client, you must have your own identity, your unique brand. हर एक सीए के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसके क्लाइंट का उस पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है. जैसे कि आप टाइम टू टाइम कंप्लायंसेस करते हैं, आप डेडलाइंस को मीट कर पाते हैं, क्लाइंट की हर एक क्वेरीज का आप अच्छे से अच्छा रिप्लाई करते हैं और टाइमली रिप्लाई करते हैं. ये सारी चीजें क्या करती है? आपका नेटवर्क बिल्डिंग करती है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को बिल्डअप करती है और आपका एक प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करती है, प्रोफेशनल एक रेपुटेशन क्रिएट करती है. एंड थर्ड वन, ब्रांड इज नेसेसरी फॉर योर इंटरपर्सनल ग्रोथ एंड योर डेवलपमेंट. हर एक दिन पे हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अपने में अपने जो यूनिक आइडेंटिटी होते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसे हम लोग डेवलप करना चाहते हैं. एक हैबिट हमारी कल्टीवेट होती है उस सारी चीजों से. सो आई कैन सम अप दैट ब्रांड मी इज नेसेसरी फॉर एट अ 3 stage. फर्स्ट वन एट इंटरपर्सनल स्टेज, second at your personal life, that is to earn and reputation in the society, and obvious professional life में अपनी आइडेंटिटी, अपनी एक अलग पहचान बहुत जरूरी है. If I say you have to be odd to be number one, but being a number one make you the one, but being unique make you the only one. आप अपने आप में बेस्ट होगे तो आपको नंबर वन बनाएगा, बट आपकी यूनिकनेस, आपकी बोलते हैं ना यूएसपी, वो आपको सिर्फ एक बनाती है. हर एक के पास ये पोटेंशियल रहता है कि जो आपको भीड़ से अलग करते हैं. जैसे मैंने बताया स्टीव जॉब्स है, लीडरशिप के में हम लोग सुने तो हम लोगों को बैरक ओबामा है, नरेंद्र मोदी जी है, ये सारे नाम याद आते हैं. ये सारे कौन है? अपने आप में एक ब्रांड है. फिर हम लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लेवल पे स्वामी विवेकानंद जी है. ये सारी चीजें क्या करते हैं कि ये नाम ऐसे हैं जो अपने आप में एक ब्रांड है, जो अपने आप में एक यूनिक पर्सनालिटी है. पर्सनालिटी और यूनिकनेस कोई भी तरह की हो सकती है. इट्स नथिंग लाइक कि आपको रोल मॉडल ही बनना है, बट कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके पास हो. लाइक समथिंग आपने अपने ग्रुप में भी देखा होगा कि सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर ऑलवेज लेट कमर्स, सो दैट आर ऑल्सो देयर ब्रांड. Obviously, it's a negative point, but that are also their brand. Or some of them are always punctual on a time. So it creates their brand. कि आप काफी बार सोचते हो, आपने काफी बार बोला होगा कि हाँ ये पर्सन XYZ वो हमेशा टाइम पे होता है, या फिर आप बोलते होंगे कि ये हमेशा लेट होता है. So your unique identity, it is your brand. Like कॉमर्स में बहुत सारे लोग ग्रेजुएट्स होंगे,
होंगे, बीकॉम बहुत सारों ने किया होगा, बट बीकॉम विथ सीए या फिर सीए विथ बीकॉम, इट्स समथिंग यूनिक। सीए जैसे आप सीए भी करते हो, आप सीएस भी करते हो, दोनों डिग्री अपने आप में ब्रांड है, बट सीएस इट क्रिएट्स अ यूनिक ब्रांड। हर कोई नहीं कर पाता सीएस। सो आपकी ब्रांड आपकी डिग्री पे डिपेंड करती है, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स पे और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। नाउ टिल नाउ, हैव यू एनी क्वेश्चंस, एनी ऑफ यू? So let's go ahead. Now main topic, how to create your brand. So create your brand have three aspects. First one, how you look. Second one, how you speak. And the third one, how you act. These three emerge and make your personal brand. That three creates your personal brand. How you look, how you speak, how you act. ये तीनों चीजें मिलाकर आपकी ब्रांड बनती है, आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनती है। There are many sub-components in each of three components. Let's have a look on that one by one. First of all, how you look. Your look matters. Look में बहुत सारे aspects आते हैं. Your appearance matters a lot. First sub-component of your look is your dressing. Dressing means that your apparels, not only your apparels, but how you carry that. Like हर एक occasion के लिए, हर एक location के लिए आपका dressing बहुत matter करता है. If you are going to office, you should have a very formal apparels. आप कहीं नवरात्रि पे गरबा खेलने जा रहे हो, वहां पे आप ऐसे business suit पहन के जाओगे, अच्छा लगेगा? Obviously not. So हर एक सिर्फ ऑफिस पे नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल जगहों पे भी नहीं, बट हर एक ओकेशन और लोकेशन के लिए एक आपका ड्रेसिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर अटायर, एक प्रॉपर ड्रेसिंग होना चाहिए। लाइक आप कहीं पे वेकेशन पे गए, वहां पे भी आप ऐसे प्रॉपर फॉर्मल शूट पहन के जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला ऋतिक रोशन वाला ही सीन होगा कि ये वेकेशन पे भी ये बहुत सारे बिजनेस करते हैं, बहुत सारे मीटिंग करते हैं, वही वाला सीन होगा। सो आप जिस जगह पे जा रहे हो, जिस पर्पस के लिए जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रेसिंग होना चाहिए। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ योर लुक इज योर एसेसरीज. Accessories, that means whatever you are carrying with you. It may be your personal phone, it may be your laptop or even laptop bag, your phone cover, your watch, your specs, etc. आपके पास, I'm not saying कि iPhone is only a brand for you, but जो कोई भी फोन है, you should have a decent back cover. आजकल के टाइम पे यंगस्टर्स में स्पेशली ये मैंने बहुत देखा है कि they have very funky colors and very funky colors covers. That वो बड़े से मिकी माउस वाला कवर होता है. It is not look good in whenever you are going on your professional field, like someone having a red color specs with a formal dress. Does it sound good? Obviously not. Then you should have a proper color of your dress. Color speaks a lot about your personality. जैसे आप कहीं फंक्शन में, आप कहीं ऑडिट प्लेस पे जा रहे हो और यू आर हैविंग अ रेड शर्ट एंड अ ब्लैक टाई और समथिंग लाइक दैट, डज इट लुक अ प्रोफेशनल? नो, you should have a proper colors, or I can say a formal dressing should be there. Then third point is a gesture. Gesture doesn't important only for your look, but it also important for how you speak. जैसे अभी आज मैं यहाँ पे सेशन ले रही हूँ, वेबकैम में ना देख के मैं कहीं इधर उधर देख रही हूँ और आपके साथ बस बातें करती जा रही हूँ. डज इट फील यू कनेक्टेड विथ मी? ऑब्वियसली नॉट. क्या करना होगा कि एक आपके आई कॉन्टेक्ट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आपके कम्युनिकेशन में एक प्रॉपर होनी चाहिए. आपके कन्वर्सेशन के टाइम पे आपका आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए. मैं अभी ऐसे बात करते करते, आप लोगों के साथ बात करते करते अपने फोन पे देखते जा रही हूँ, अपना और कोई काम करती जा रही हूँ और एक तरफ मेरा ये सेशन चालू है, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कनेक्टेड आप लोग नहीं रहोगे. सो योर जेस्चर इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लुक. सेकेंड वन इज योर पोस्चर. Posture, that means your positions.
आप कहीं पे भी जा रहे हो, हाउ यू सीट, द वे ऑफ योर स्टैंडिंग, द वे ऑफ योर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, द वे ऑफ योर वॉकिंग इज important for you to create your brand. In the simple terms I can say, just आप लोगों ने बहुत सारा लिटरेचर देखा होगा, सुना होगा एटिकेट्स के बारे में, whether it's an interview etiquette, dining etiquette or some other etiquettes. जेस्चर और पोस्चर का कॉम्बिनेशन इज एन एटिकेट्स, और एटिकेट्स बेसिकली क्या होता है? अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दैट वन मस्ट फॉलो to create a a professional for a professionalism, or to create your an identity. लाइक फिनेंशियल रिपोर्टिंग में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर इंड एस आ गए अभी, तो वैसे ही अ पर्सन को प्रेजेंट करने के लिए जो रूल्स है, जो सेट ऑफ रूल्स है, उसे हम बोलेंगे एटिकेट्स या फिर जेस्चर प्लस पोस्चर्स. नेक्स्ट वन इज योर फेशियल एक्सप्रेशन. आपके लुक में आप कैसे प्रेजेंट होते हैं, उसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. आपके इमोशंस को हर एक जगह पे लाउडली आपको एक्सप्रेस नहीं करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अभी इनकम टैक्स ऑफिस में गए हो, नो डाउट इन फ्यूचर ये सारा केसेस नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दैट फेसलेस असेसमेंट और ऑल सच स्कीम्स, बट आप इनकम टैक्स ऑफिसर में गए हो, ऑफिसर आपकी बात नहीं सुन रहा है, यू नो दैट यू आर राइट पर्सन, ऑफिसर्स का मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपको उसको अपना पॉइंट रखना है, आपको बहुत गुस्सा है कि नहीं ये मैं ही सही हूँ, बट यू कांट एक्सप्रेस दैट. आपके फेस पे वो एक्सप्रेशन, वो गुस्सा नहीं आना चाहिए. यू शुड बी वेरी पोलाइट विद दैट पर्सन. चाहे जितना भी गुस्सा हो, आपको बोलना तो ऐसे ही पड़ेगा कि सर वुड यू प्लीज लिसन टू मी. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको सुनना ही पड़ेगा. आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके जो बोलने के हाव भाव होते हैं, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर लुक, फॉर योर अपीयरेंस. Is it clear? How you look that really matters for presenting yourself, for creating your identity. Is it clear to everyone? Okay. Now go to the second aspect, how you speak. First of all, your tone of voice. आपके जो कोई भी इमोशंस होते हैं वो आपके टोन में आ ही जाते हैं, वो नेचुरली होता है, बट एज अ प्रोफेशनल वी शुड कंट्रोल दैट. लाइक आप बहुत ज्यादा खुश है, आप बहुत ज्यादा गुस्से में है, बट आपके वो टोन में वो नहीं आना चाहिए. आपके टोन में क्या होना चाहिए? एक पोलाइटनेस होनी चाहिए, एक सिंप्लिसिटी होनी चाहिए. सेकेंड थिंग, योर लैंग्वेज. लैंग्वेज दैट मीन्स दैट सामने वाला जो कोई भी लैंग्वेज में बात कर रहा है, यू शुड रिप्लाई ऑन द सेम लैंग्वेज. If your client is talking with you in English, then you must reply him in English only. You can't say मातृभाषा है मेरी गुजराती में ही मैं बात करूंगा. You can't say that. If he is talking to you in Hindi, then you must reply in Hindi. Communication should be in a one language only. आप इंटरव्यू में भी आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि इंटरव्यूअर जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन करता है, उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देना पड़ता है. ये बात सिर्फ इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर डे टू डे कम्युनिकेशन एज वेल. इवन आई एम सेइंग कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, देन ऑल्सो मेंटेन अ यूनिटी ऑफ लैंग्वेज. काफी बात गुजराती में करते हो, देन सडनली हिंदी में स्विच ओवर हो जाते हो, देन कोई आता है वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलता है. डोंट डू दैट. प्रैक्टिस आप अपने इनफॉर्मल वे से करोगे, तभी वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक हैबिट बन के रह जाएगी. अदरवाइज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती होगी कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, और आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश. ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती होगी, बट ये हम कैसे ओवरकम कर पाते हैं? कि हर रोज उसकी प्रैक्टिस करके. क्लियर? थर्ड वन, वोकेबुलरी. वो आप कैसे डेवलप कर पाओगे? सो उसके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही सॉल्यूशन है. यू शुड रीड मोर एंड मोर बुक्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, इवन आपके सीए का जर्नल भी पढ़ो. वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, बहुत सारा आपको नॉलेज भी मिलेगा, आपकी वोकेबुलरी भी इंक्रीज होगी. थर्ड वन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अपार्ट फ्रॉम वर्बल कम्युनिकेशन, your non-verbal communication plays a very important role in your speech or in your you can say communication or conversation. आप बोलते कुछ हो, आपका ध्यान कहीं और पे है. Sounds good? Obviously not.
आप जैसे कि घर पे भी बहुत बार होता है, आपका ध्यान मोबाइल में लगा रहता है, आपके पेरेंट्स आपसे बात करते हैं, आपके सिबलिंग्स आपके साथ बात करते हैं, आप सिर्फ नॉडिंग करते हो या फिर हाँ ना में ही जवाब देते हो. डज इट साउंड गुड? इज इट लुक गुड? कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो कैसा रहेगा? So, आपका non-verbal communication, that means your body language, especially one-to-one conversation जब होता है, at that time your non-verbal communication is most important. वन टू मैनी में ठीक है चलो, बिकॉज एक डिस्टेंस होता है, सो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैटर करता है, बट वन टू वन में जितना सामने वाला आपको नोटिस करता है उतना वन टू मैनी में नहीं कर पाता. सो योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल. Now going to the third aspect, how you act. First and foremost, your punctuality, timeliness. और सीए में आर्टिकलशिप मेंटर होते ही आपको डेडलाइंस का इंपॉर्टेंट पता चल गया होगा. टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न्स, ये सारे काम आप डेडलाइन के अंडर में रह के आप कंप्लीट करते हो. हर एक लोगों ने ऑफिस में ये एक्सपीरियंस किया ही होगा. सो पंक्चुअलिटी मैटर्स. आप डेडलाइन के अंदर में जो कुछ भी काम करते हो वही पंक्चुअलिटी आपके हर एक एक्शन में होनी चाहिए. लाइक क्लासेस पे टाइम से पहुंचना, ऑफिस पे टाइम से पहुंचना. 11 बजे का टाइम है, सो इट डजंट मीन आप 11:15 को पहुंच के बोलते हो कि सर ट्रैफिक बहुत था. ये आपकी पंक्चुअलिटी है, आपका प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा. योर पंक्चुअलिटी इन ईच एंड एवरी एक्शन. आप किसी को कमिट करते हो कि हाँ मैं आज शाम तक आपको मेल कर दूंगा, देन यू शुड मेल, यू शुड रिप्लाई देयर क्वेरीज. आप ऐसे नहीं बोल सकते हाँ मैं भूल गया, ये हुआ वो हुआ. अगर आप भूल जाते हो देन यू शुड इन योर नेक्स्ट कन्वर्सेशन यू शुड फर्स्ट अपोलोजाइज फॉर दैट कि सॉरी मैं कल नहीं कर पाया था एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट टुडे. पंक्चुअलिटी मैटर्स very much of important in your professional life. Second, anger management. जैसे मैंने बोला इनकम टैक्स ऑफिस वाला आपको एग्जांपल दिया, एंगर मैनेजमेंट बहुत सारी जगहों पे आपको आपकी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करता है. Being a CA in a very near future, you must control your anger. कोई क्लाइंट है, बहुत सारी क्वेरीज लाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करता है, आपके माइंड में जितना भी चाहे गुस्सा हो, you can't express your anger before him. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप ये बात मुझसे मत पूछो या फिर आप ये बात कितनी बार बोलोगे. He is your client. You should reply him each and every time with the same politeness, with the same calm mindset. Not only your professional life, even your in personal life, anger management is very much of importance. आप लोगों ने सभी ने एक स्टोरी सुनी होगी, मतलब बहुत ही कॉमन स्टोरी है कि एक पर्सन था जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मॉर्निंग में. वहाँ पे जाके उसका एक छोटी बेटी थी. वो जाती और बोलती है पापा आप मुझसे बात करो. वो बोल रहे कि नहीं बेटा मैं अभी बात नहीं कर सकता. और यही कन्वर्सेशन में चाय का कप उसके बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे गिर जाता है और वो डॉक्यूमेंट बिगड़ जाता है. देन व्हाट हैपेंस, वो गुस्सा होता है, घर पे गुस्सा होता है, घर का पूरा एटमॉस्फेयर बिगड़ जाता है. वही गुस्से वाले टेम्परेचर में, वही वो गुस्से वाले टेम्परामेंट में वो जाता है ऑफिस में. बिकॉज ऑफ दैट उसका काम बिगड़ता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसका पूरा दिन ऐसे जाता है. So not only in personal life, but not only in professional life, but also in your personal life, anger management is important. Next point is a teamwork. हर एक जगह पे, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे, आपके पर्सनल लाइफ में आपको टीम वर्क करना होगा. इन योर करंट सिचुएशन, बीइंग एन आर्टिकल भी आप लोगों को टीम ऑफ आर्टिकल को हर ऑडिट असाइन किया जाता होगा या फिर कोई भी काम होगा वो आपको टीम में असाइन किया जाता है. जैसे एग्जांपल मैं दे सकती हूँ विकासा टीम का. दे आर डूइंग वेरी वेल. उन लोगों का टीम वर्क इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू गाइस. टीम वर्क में आपको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना होता है. यू कांट से ऑलवेज कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा. आपको खुद का पॉइंट रखना भी होता है, दूसरों का पॉइंट सुनना भी होता है, और जो सबके लिए बेस्ट है, जो आपकी टीम के लिए बेस्ट है, वही आपको सिलेक्ट करना होता है. सो टीम वर्क इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. नेक्स्ट इज अ लीडरशिप. लीडरशिप स्किल कहाँ पे काम आती है? लीडरशिप स्किल विल इम्पोर्टेंट फॉर यू व्हेन यू आर एट आई कैन से एट अ सीनियर पोजीशन. जब आपको किसी को गाइड करना होता है या फिर जब आपको किसी को लीड करना होता है.
जैसे थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप या फिर आपके लास्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में आपके भरोसे आपका प्रिंसिपल एक टीम अलॉट कर देगा कि हाँ भाई ये क्लाइंट का ऑडिट 2 साल से आप करते हो कि इस साल भी आप करो और ये आपको नए 2 आर्टिकल है। सो आपको एज अ सीनियर आपको डिसाइड करना है कि आपको एज अ सीनियर वाले जो क्या बोलते हैं टिपिकल मेंटालिटी होती है उसी टाइप पे अपने आर्टिकल्स को ट्रीट करना है या फिर यू वांट टू ट्रीट देम एज अ लीडर। लीडर और सीनियरिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। लीडरशिप में आप अपने जूनियर्स का या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स का क्या करोगे, उसका भी ग्रोथ करना आप चाहोगे। नॉट ओनली जैसा कि आप बोलो डू एज डायरेक्ट, उसमें नहीं होता लीडरशिप में। लीडरशिप में आप अपने सबऑर्डिनेट को सुनोगे, उसके पॉइंट्स को आप इवेल्युएट करोगे, देन आपको वो ठीक लगेगा, यू मे एक्सेप्ट दैट। बट फर्स्ट थिंग इज यू विल लिसन टू योर सबऑर्डिनेट्स। आज नहीं तो कल आप लोग लीडर बनने ही वाले हो। आप अपने जूनियर्स को गाइड करोगे, आइदर स्टडी में गाइड करोगे या फिर अपने आर्टिकलशिप में स्टार्ट करोगे। इफ यू विल बी इन अ प्रैक्टिसिंग फील्ड देन आप अपने आर्टिकल्स को भी गाइड करोगे। सो एज अ लीडर यू शुड हैव ऑल सच कैरेक्टरिस्टिक कि जहाँ पे लोग आपको आइडल मानेंगे, जहाँ पे लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं अपने लीडर की तरह काम करूंगा। नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर हाउ टू एक्ट इज योर एथिकल वैल्यूज। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्टूडेंट लाइफ में, हर एक जगह पे एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी करके हर कोई पास हो सकता है बट उससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। जो कोई ये कर रहा है वही काम मैं कर लूं, इट्स अ कॉपी पेस्ट, वहां पे आपकी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगी। आपको खुद के एथिक्स पे काम करना होगा। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में बहुत ज्यादा फर्क है, ये आप सबको पता है। सो यू आर इन द टैक्स प्लानिंग, बीइंग ए सी आपको लोगों को प्लान कैसे करना है, इथिकली टैक्स को कैसे बचाना है वो समझाना है। डोंट गिव द वेज के टैक्स को आप टैक्स चोरी कैसे करो, ये आपको नहीं समझाना है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी जैसे सबका एथिक्स होता है कि चोरी नहीं करनी है। किसी का आपको पेपर कोई ऐसा आंसर के सामने रख के जाता है, फिर भी आपके एथिक्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि यू विल नॉट सी दैट बुक और दैट पेपर। खुद के बल पे, खुद के नॉलेज पे ही आपको पास होना है। दैट्स योर एथिक्स। बहुत सारे एथिक्स के एग्जांपल है, जैसे किसी का बुरा नहीं करना है, सबको हेल्प करना है, ये सारे आपके एथिक्स होते हैं। और आप किसी के लिए काइंडनेस रखना है, स्प्रेडिंग ऑफ पॉजिटिविटी, ये सारे आपके इथिक्स है। लाइक हर एक पर्सन में क्या है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज होती है, बट आपको वो नेगेटिविटी को हाईलाइट करना है, नेगेटिविटी को देखना है, या फिर हर एक की पॉजिटिव अप्रोच को कंबाइन करके खुद का एक अलग ब्रांड बनाना है, खुद की एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना है। दैट डिपेंड्स ऑन यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? सो ब्रांड 3 स्टेज पे हम लोग को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन एट योर इंटरनल ब्रांड, जो आपके इथिक्स, आपके मॉरल्स, जो आपकी वैल्यूज होती है, लाइफ वैल्यूज जिसे हम बोल सकते हैं। सेकेंड वन योर एक्सटर्नल पर्सनालिटी, जैसे मैंने बोला आपका ड्रेसिंग, आपका अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपकी ब्रांड क्रिएट करती है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, टूडेज डिजिटल वर्ल्ड, इज योर डिजिटल फुटप्रिंट और योर सोशल मीडिया। जैसे मैंने बोला कि हाउ यू प्रेजेंट, इट्स अ वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखती डिजिटल फुटप्रिंट की जगह की सोशल मीडिया प्रोफाइल, तो सब लोगों को पता चल जाता कि हाँ मैम अगर नेक्स्ट क्या बोलने वाले। बट द वर्ड्स, योर वोकैबुलरी, दैट मैटर्स। आई एम नॉट सेइंग कि ईच एंड एवरी टाइम यू यूज द jargons दैट अदर्स डोंट अंडरस्टैंड, बट हैव समथिंग यूनिक इन योर वोकैबुलरी। सो डिजिटल फुटप्रिंट और डिजिटल मीडिया हम सब लोग यूज करते हैं आजकल। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा। मतलब आप अपनी सी एग्जाम्स के लिए 6-8 महीना व्हाट्सएप वगैरह बंद कर देते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इट डजंट मीन कि आप डिजिटल मीडिया से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही आप उसका यूज ही नहीं करते। नो, दैट्स नॉट लाइक दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी डिजिटल मीडियम की बात करो तो फर्स्ट वन इज योर व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में इफ यू आर हैविंग योर प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स विथ योर पर्सनल कॉन्टेक्ट, देन यू शुड बी मोर अवेयर। आप क्या पोस्ट करते हो, आप अपना प्रोफाइल पिक्चर, और जिसे हम मोर लाइकली डीपी बोलते हैं, वो कैसा रखते हो, दैट मैटर्स। आई एम नॉट सेइंग दैट
प्रोफाइल पिक्चर में वो ब्लेजर वाला एकदम प्रोफेशनल वाला ही, बट यू शुड हैव अ डिसेंट पिक कि जो आपके ब्रांड को क्रिएट करता है. सेकंड, आप क्या पोस्ट करते हो ऑन योर सोशल मीडिया, दैट आल्सो इम्पोर्टेंट. जैसे कि काफी लोगों को ऐसी हैबिट होती है कि कहीं से देखा है, फॉरवर्डेड मैसेज अपनी स्टोरी में पेस्ट करते हैं और सारी जगह पे ये दिखाते हैं कि हाँ मैंने ये पोस्ट किया है. इट शुड नॉट लाइक. यू शुड स्प्रेड सम नॉलेज कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जो आपके कॉन्टेक्ट्स में है, उनका नॉलेज बढ़े, उनके साथ आप नॉलेज शेयर करो. जैसे उसका मैं एग्जांपल बहुत अच्छा दे सकती हूँ. दिव्या हर रोज एक अलग अलग वर्ड प्रेजेंट करती है अपनी स्टोरी में. इट रियली वेरी नाइस. उसका जो एफर्ट है वो सबका नॉलेज क्रिएट करता है, सबका नॉलेज इंक्रीज करता है, सबकी वोकाबुलरी इंक्रीज करता है. सो यू शुड हैव पोस्ट समथिंग लाइक दैट इंक्रीज योर नॉलेज, एंड उसके दूसरों का नॉलेज इंक्रीज होगा, साथ में ही आपकी खुद की एक ब्रांड, आपकी खुद की एक इमेज बनना स्टार्ट होगा. जैसे लाइक अभी मैं बोल रही हूँ कि दिव्या के साथ में आई थिंक लास्ट 10 और 12 डेज से कांटेक्ट में रही होगी, बट आई कैन से दैट, आई कैन सी दैट शी इज शेयरिंग अ वेरी गुड नॉलेज on each and every day and with a very good caption. अभी देखा था, it's a second century on her 200 post of vocabulary. So it's a very good effort. उसी की तरह आप जो कुछ भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है, उसका नॉलेज आप दूसरों के साथ शेयर कर सको, वैसा कुछ आप पोस्ट करो. इट्स नॉट लाइक कि हर बार आप यहीं पे पोस्ट करो कि हाँ मैं चिलिंग विद फ्रेंड्स, एंजॉयड वीकेंड, ये सारा हर बार पोस्ट करने की जरूरत नहीं है. आपका पर्सनल मीडिया, आपका पर्सनल सोशल मीडिया आप पोस्ट कर सकते हो, बट एज अ प्रोफेशनल, whenever you are having a professional contact, you should be more aware that what you are posting on a social media. The digital brand, your digital identity is important in today's world. Second, LinkedIn profile. बहुत सारे लोगों का LinkedIn प्रोफाइल होगा. LinkedIn is basically for networking, for build up your professional network. जैसे LinkedIn पे आपका कोई क्या बोलते हैं, जॉब कनेक्शन के लिए, जॉब नेटवर्किंग के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए आई कैन से प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ पे आपको अपना पिक्चर, अपना जो प्रोफाइल फोटो है, इट शुड बी वेरी मच ऑफ प्रोफेशनल. आई कैन से आप अपना प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग वाला ही फोटो वहां पे रखना. सेकेंड थिंग, योर प्रोफाइल समरी. प्रोफाइल समरी में हमें कोई ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने की जरूरत नहीं है. यू शुड राइट इन अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, इन अ सिंपल लैंग्वेज, दैट व्हाट यू हैव डन टिल द डेट एंड व्हाट्स योर फ्यूचर प्लानिंग. It should be a maximum of 4 to 5 lines. And the most important thing on a LinkedIn profile is your tagline, या फिर I can say your profile line. जैसे कि आप अपना नाम के नीचे लिख सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट. At your stage you can write a student at ICAI or something like that. Your profile line will be a very most important for creating your brand, for creating your network, to connect with more and more professional workers. Third and fourth, that is Instagram and Facebook, most popular between us, most popular for a youth. इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप जो कुछ भी करते हो सब कुछ डालते होंगे. वैकेशन पे गए थे, ये किया, एग्जाम टाइम आ गया, लॉकडाउन, और लॉकडाउन में तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे. ये सारी चीजें आपने की होगी, वेल एंड गुड, नथिंग बैड इन दैट. बट एट अ प्रोफेशनल लेवल, जब भी आप अपने स्टूडेंट लाइफ से बाहर आके मेंबर बनोगे, आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जब मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर पे कन्वर्ट होगा, एट दैट टाइम यू शुड बी अवेयर कि आप क्या पोस्ट कर रहे होंगे, बिकॉज आपके पास बहुत सारा प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स हो गया, आपका बहुत सारा प्रोफेशनल नेटवर्क उसमें होगा. आई एम नॉट सेइंग कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को पोस्ट मत करो, यू कैन डू दैट, बट क्या होना चाहिए कि एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी होनी चाहिए. हर एक इवेंट आपकी जो होती है वो सोशल मीडिया पे डालने की जरूरत नहीं है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो. No one will happy with your happiness. आपकी हैप्पीनेस, आपके अचीवमेंट्स आपको शो करने चाहिए, बट टू द लिमिटेड एक्सटेंट एंड विथ अ गुड कंटेंट, विथ अ गुड दैट टैगलाइन. सीए का रिजल्ट आएगा, हर एक
का जो कोई भी सीए क्लियर होगा लिखेगा नाउ इट्स सीए सो एंड सो, हर एक ये पोस्ट करने ही वाला है कि हाँ डिग्री मिल गई, या फिर वो मार्कशीट के स्क्रीनशॉट के साथ आप प्रेजेंट करोगे फाइनली क्लियर्ड, गोल अचीव्ड, ड्रीम कम्स टू ट्रू, ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन करोगे. बट यू शुड हैव सम यूनिकनेस इन प्रेजेंटिंग योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज नाउअडेज आप कोई भी जॉब के लिए जाओगे या फिर किसी भी चीज के लिए अप्लाई करोगे, दे विल फर्स्ट चेक योर सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर लिंक्डइन अकाउंट्स. So I would like to suggest every one of you to have a LinkedIn account, maintain it properly, and post something regular on LinkedIn, which creates, which is of your area of interest. जैसे आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट है तो वीकली टैक्सेशन की कोई अपडेट्स है वो आप सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको प्रेजेंट करो, या फिर आपको आईडीटी में इंटरेस्ट है तो आप जीएसटी के जो सारे नोटिफिकेशंस आते हैं उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना कोई आर्टिकल प्रेजेंट कर सकते हो. जैसे आपने अभी ही सेशन अटेंड किया हाउ टू डेवलप राइटिंग स्किल्स जस्ट इन लास्ट वीक, सो आप उस पर आप फोकस आप अपनी राइटिंग स्किल को अपने सोशल मीडिया पे ला सकते हो. सो ये सारी चीजें जो आपने सीखी है वो आप इम्प्लीमेंट करके कहाँ पे पब्लिश कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे. बट कैसे करना है दैट अप टू यू, और आप जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो दैट विल क्रिएट योर ब्रांड. इज इट क्लियर? Now, any questions, any answers? Any questions? If anyone having any queries, they can kindly unmute themselves. Yashvi, kindly Yeah. unmute you. Yeah, I would like to thank CA Pankti ma'am on behalf of Ahmedabad branch of Vikasa, and I'm sure with your tips we will be able to create our brands in future and get inspired from this. And I'm sure we got so many tips from you on how to present ourselves and how to make ourselves presentable. And so yes, thank you on behalf of Team Vikasa. And I would also like to thank Fenil sir, Harit sir, and Anjali ma'am for bringing up such ideas. And also thanks to Vikasa management team for organizing and managing such beautiful events. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much for listening to me. Thank you so much for your time. And lastly, in this COVID situation, be negative but stay positive. All the best for your futures. Thank you so much, ma'am. Shall we end the meeting? Yes, ma'am. Thank you.